Assalamu alaikum students. Today we will cover lecture number 4 of chapter number 25 and the topic of today's lecture is population dynamics. Contents include population dynamics, its definition and characteristic of population. Then we will study about nuclear power and global warming and how these two factors are affecting population. By the end of this section, you will be able to describe effects of global warming. You can explain characteristics of population and you can also state the problem of nuclear power. Population dynamics. Population dynamics is concerned with the studies of long-term and short-term changes in a population size. Population is basically a group of organism belonging to similar species. और population size का मतलब है number of individuals that are present in that particular population. तो population का जो size है वो change होता रहता है. उसके अंदर कुछ long term changes भी आती हैं और short term changes भी आती हैं. Short term changes are those changes which occur for a shorter period of time, while long term changes affect the population size for a longer duration. तो पॉपुलेशन डायनामिक्स के अंदर हम चेंजेस को पढ़ते हैं कि किस तरह की चेंजेस हो रही हैं पॉपुलेशन के साइज के अंदर. एंड दिस पॉपुलेशन साइज इज बेसिकली चेंजेस बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स. दीज थ्री फैक्टर्स कैन बी इनफ्लो, ओवरफ्लो एंड द आउटफ्लो. सो दीज थ्री फैक्टर्स दे गवर्न द पॉपुलेशन साइज. This figure explains different factors which are affecting the population size. So first factor is inflow. Inflow means there are different events that are responsible for increasing the number of individual of a particular population. Let's suppose this is the population of any organism, for example, population of rabbits. So there are when more birth or immigration means when rabbits from other area migrate to this area to inhabit this place. तो इमिग्रेशन और बर्थ की वजह से नए इंडिविजुअल्स इस पॉपुलेशन के अंदर आते हैं और पॉपुलेशन का जो नंबर है वो इंक्रीज कर जाता है. सो पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ दीज टू इवेंट्स. देन देयर इज अनदर फैक्टर विच इज आउटफ्लो. आउटफ्लो इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन साइज. आउटफ्लो के अंदर भी डिफरेंट इवेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कलिंग, प्रिडेशन, नेचुरल डेथ एंड देन देर आर एक्सीडेंट्स एंड एमिग्रेशन. कलिंग होता है कि किसी खास स्पीशीज को या इंडिविजुअल्स को पॉपुलेशन में से सिलेक्ट किया जाता है और उनको किल कर दिया जाता है ड्यू टू सर्टेन रीजन. प्रिडेशन का मतलब है प्रिडेटर और प्रे इवेंट्स की वजह से पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं उनका नंबर डिक्रीज होगा. नेचुरल डेथ भी एक पॉपुलेशन है, उसके अंदर ये नेचुरल इवेंट है. अगर बर्थ हो रही है तो साथ साथ नेचुरल डेथ भी चल रही है. Then there is emigration. Emigration means some of the rabbits from this population leave this place and they will migrate to a new area. So this is the emigration event, and due to certain accidental events there is decrease in the number of individuals of this population. तो इनफ्लो और आउटफ्लो की वजह से ही एक पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में मेंटेन रखती है. बर्थ भी हो रही है और डेथ भी हो रही है, लेकिन अगर डेथ रेट डिक्रीज कर जाए, आउटफ्लो डिक्रीज हो और बर्थ ज्यादा है, इमिग्रेशन इवेंट ज्यादा हो रहा है, और या हम ये कह सकते हैं कि इनफ्लो अगर ज्यादा है तो उससे भी पॉपुलेशन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा. एंड इफ इनफ्लो इज एट अ नॉर्मल रेट और मॉडरेट रेट बट द डेथ रेट इज हायर और आउटफ्लो एक्टिविटीज आर मोर, देन पॉपुलेशन इज अगेन इन डिसइक्विलिब्रियम. So these inflow and outflow must be in an equilibrium state for efficient working of a population. Then there is another terminology which is overflow. Overflow के अंदर हमारे पास आप अगर यहाँ पे देखें तो ये एक population है, ये शो करे कि overflow हो गया है. Overflow का मतलब ये है कि population के अंदर number of individuals ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स थे अब वो जब स्पेस भी कम हो गई है, इंडिविजुअल ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट्स कम अवेलेबल हैं. So overflow results in the lower recruitment, higher mortality and poor condition. When nutrients availability is low and the number of individuals are more, then the condition of that particular population is poor.
कंडीशन क्यों पुअर हो जाएंगी? न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं, जो उस पॉपुलेशन का पार्ट है, वहां पे वो फिर सर्वाइव नहीं कर सकते. सो देर इज इंक्रीज इमिग्रेशन. यहाँ से जो रैबिट्स की स्पीशीज हैं, दे विल मूव टू अनदर प्लेस वेयर मोर न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल. And habitat degradation also occurs because of the less availability of nutrients. So this inflow, overflow and outflow, they are controlling the population size, and these three factors include various events which are responsible for either increase or decrease in the number of individual of a particular population. Next is the characteristics of population. So population is a group of individuals of a single species living in the same area. Organism belonging to single species and they are present in the same habitat makes a population. And population has various characteristics. Number one is the growth. It is increase in the number of individuals of a population. तो एक कोई भी population हो, let's suppose अगर हम बात करते हैं human population है, इस रैबिट्स की पॉपुलेशन है, या हम बात करें कैटल की पॉपुलेशन है, तो उसके अंदर ग्रोथ का जो फीचर है वो तमाम पॉपुलेशन के अंदर कॉमन है. एंड व्हाट इज ग्रोथ? इट्स इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल. बर्थ की वजह से जो इंडिविजुअल का नंबर है वो इंक्रीज कर जाता है. पॉपुलेशन हमेशा ग्रोथ ज्योमेट्रिकली करती है, और जो मेंबर्स होते हैं पॉपुलेशन के, दे रिलाई ऑन द रिसोर्सेज एंड दोज रिसोर्सेज आर शेयर्ड बाय ऑल द मेंबर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन. तो अगर उस पॉपुलेशन के रिसोर्सेज अफेक्ट होंगे किसी इवेंट की वजह से, तो अल्टीमेटली जो पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं दे आर अफेक्टेड. इफ यू टॉक अबाउट द ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रो ज्योमेट्रिकली. ज्योमेट्रिकली मतलब ये है कि उसका नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज करता है. इनिशियली देर इज लैग फेज, देन देर इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. लैग फेज वो टाइम पीरियड होता है कि जब एक स्पीशी किसी नई जगह पे जाकर अपने आप को एडजस्ट करती है, तो वो टाइम पीरियड उसको बोलेंगे हम लैग फेज. बट आफ्टर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म गेट्स सेटल टू द न्यू सराउंडिंग, देन देर इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज इन विच द ग्रोथ पीरियड इंक्रीजेस. टाइम जो है उसका ड्यूरेशन इंक्रीज कर जाएगा, और उसकी वजह से जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो भी ज्यादा हो जाएंगे. सो पॉपुलेशन साइज डबल एट रेगुलर इंटरवल, एंड we can say that during exponential phase population show geometric increase. Second is the density. Density is the number of individuals per unit area or volume. For example, number of Escherichia coli present in the per milliliter in a test tube, or the number of mulberry trees per square kilometer in Islamabad. एक particular area के अंदर जितने individual present होंगे उसको हम बोलते हैं population density. सो पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम ह्यूमन से रिलेट करें तो जैसे सेंसस जब करवाया जाता है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में देखा जाता है कितने इंडिविजुअल्स यहाँ पे रहते हैं, और डिफरेंट एरियाज की फिर काउंट करके टोटल उस सिटी का बताया जाता है कि यहाँ पे इतने इंडिविजुअल्स जो हैं वो इनहैबिट हैं. सो ग्रोथ एंड डेंसिटी, दीज टू फैक्टर्स आर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन. थर्ड वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन. So distribution is the dispersion of individuals in a population. एक population के अंदर individuals कितने dispersed है, किस किस area के अंदर उनकी distribution कैसी है, तो इसको हम बोलते हैं distribution characteristic. And there are three pattern of distribution. One is the clumped distribution, second is the uniform distribution, and third one is the random distribution. Okay, so clumped distribution. क्लम्प्ड का मतलब है कि इंडिविजुअल्स आर क्लस्टर्ड इन ग्रुप्स. ग्रुप की फॉर्म है फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ फिशेस, ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, ग्रुप ऑफ ज़ेब्रास लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया. सो देयर इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट इज इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया. यूनिफॉर्म भी हो सकती है. यूनिफॉर्म का मतलब है कि जो इंडिविजुअल्स हैं दीज आर इवनली स्पेस्ड. ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पे ज्यादा होंगे किसी जगह पे कम होंगे. नो, दे आर नंबर इज यूनिफॉर्म इन ऑल द एरियाज. और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल है, लेट्स सपोज पेंगुइन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं जिस जहां पे वो रह रहे हैं. थर्ड वन इज द रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन. रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन मींस दैट अनप्रिडिक्टेबल स्पेसिंग अमंग इंडिविजुअल्स, या हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल्स आर रैंडमली डिस्पर्स्ड इन अ पर्टिकुलर रीजन. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स जो डैंडलियंस हैं, डैंडलियंस आर दी प्लांट्स, और उनके जो सीड होते हैं वो विंड से डिस्पर्सल होता है. सो वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट है. हम देखते हैं पाकिस्तान जो कैपिटल है इस्लामाबाद, वहाँ पे हमें बहुत से डैंडलियन नज़र आते हैं.
and but they are not present particularly in a specific area. Instead, they are distributed randomly in various places. Then comes the carrying capacity. So carrying capacity is the maximum population size that a particular environment can support. कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने इंडिविजुअल रह सकते हैं. अब ये डिपेंड करता है, इट इज नॉट फिक्स एंड इट वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम डिपेंडिंग अपॉन रिसोर्सेज. इफ there are more resources in a particular area, then that area will support more population. But if an area having less number of resources, then there are less number of individuals inhabiting that area. तो कैरिंग कैपेसिटी है कि एक एरिया के अंदर कितने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितने अच्छे रिसोर्सेज होंगे वहाँ का पॉपुलेशन साइज भी ज़्यादा होगा. जैसे नॉर्मली हम बात करें तो सिटीज़ के अंदर तमाम फैसिलिटीज़ जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, वो अवेलेबल होती हैं. तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन का नंबर है वो ज़्यादा होता है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट दी सोसाइटीज़, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा उस तरह बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम है. सो कैरिंग कैपेसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस कैरिंग कैपेसिटी मेंटेन्स द पॉपुलेशन इन इक्विलिब्रियम स्टेट. अगर कैरिंग कैपेसिटी डिस्टर्ब होगी तो पॉपुलेशन के अल्टीमेटली कंप्लीटली हैबिटेट डिग्रेडेशन भी हो जाता है. Role of Population Welfare Department in regulating the population dynamics. This department is providing family planning and reproductive health services through various programs. Various programs have been initiated by this department और जिससे health services provide की जा रही हैं. Family welfare centers have been developed जिससे जो मदर और चाइल्ड उसकी हेल्थ के लिए प्रॉपर स्टेप्स लिए जा रहे हैं. मोबाइल सर्विस यूनिट्स आर प्रोवाइडिंग इमीडिएट हेल्प एंड सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस सेंटर्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एंड दे आर रन बाय वेरियस NGOs विच वर्क अलॉन्ग विद द पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट, ताकि जो चाइल्ड की और मदर की हेल्थ है उसको प्रॉपरली मॉनिटर किया जा सके एंड टू प्रिवेंट हाई मोर्टेलिटी रेट ऑफ न्यूबॉर्न्स. Human activities cause severe damage to environment such as ozone depletion, deforestation, water pollution, global warming, soil erosion, industrialization and transportation. डेली बेसिस पे अगर हम देखें जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है. लाइक ओजोन विच इज़ द प्रोटेक्टिव लेयर दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, उसकी डिप्लीशन हो रही है. फिर डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्योंकि पॉपुलेशन का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ओवर पॉपुलेशन रिजल्ट्स इन द डिफॉरेस्टेशन टू मेक मोर लैंड अवेलेबल फॉर द पीपल टू लिव. सो डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन लोअर प्रेसिपिटेशन. फिर पोल्यूशन रेट बहुत इंक्रीज कर गया, टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही हैं विच इज़ रिजल्ट्स इन द ग्लोबल वार्मिंग एंड सॉइल इरोजन. तो सॉइल भी उस तरह फर्टाइल नहीं रही, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी डिस्टर्ब हो गई है बिकॉज ऑफ दिस वेरियस फैक्टर. द फर्स्ट वन, first impact of humans on the environment is the development of nuclear power station. So nuclear power is the use of sustained nuclear fission to generate heat and electricity. हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए वी हैव ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर. और 2005 में रिपोर्ट किया गया था दैट न्यूक्लियर पावर प्रोवाइड 6.3% ऑफ वर्ल्ड एनर्जी वाइल 15% ऑफ वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के थ्रू ही जनरेट हो रहा है. तो न्यूक्लियर एनर्जी जो न्यूक्लियर मैकेनिक्स है उसको यूज किया जाता है और उन प्रिंसिपल की बेस पे एनर्जी को जनरेट किया जा रहा है. सो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस आर डेवलप्ड बिकॉज ऑफ scarcity of fossil fuels. Okay, fossil fuel बहुत से जो कंट्रीज हैं वहाँ पे फॉसिल्स अवेलेबल नहीं है एंड फॉसिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूज्ड एज अ फ्यूल. उनको बर्न किया जाता है, कोल बनाया जाता है, पेट्रोलियम बनता है, देन पीट, जिसको डेली बेसिस पे उसको यूज किया जा रहा है फॉर इंडस्ट्रियल एज वेल एज डोमेस्टिक यूज. लेकिन जहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स अवेलेबल नहीं है वहाँ पे न्यूक्लियर पावर स्टेशंस को डेवलप किया गया है टू मीट अप द डिमांड ऑफ एनर्जी. Advantages and disadvantages of nuclear power. Advantages include its cost about the same as coal. Nuclear power build करना जो है that is costly,
but the running of nuclear power station is not that much costly, और जो fuel इसकी cost है, fuel की cost वो भी कम है, and it's same as that of the coal. Moreover, it does not produce any kind of smoke, so does not cause any pollution, and carbon dioxide emission is also less, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी नहीं होता. ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रही, इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट भी नहीं हो रहा. Less waste is produced because of the nuclear power plant, and more energy is produced due to this. Moreover, this nuclear power is very reliable compared to the other sources of energy production. But there are some disadvantages as well. First one is the surety of safe operation, and the second is the safe disposal of waste. These two will be discussed in detail in next slide. Surety of safe operation. Following actions should be taken to achieve maximum or optimum safety. Number 1, maintenance of high quality design and construction. Second is the comprehensive monitoring to detect equipment failure. तो सबसे पहले हम बात करें, हम safe operation कहते हैं, उसकी working जो है वो safe होनी चाहिए, और वो कैसे हो सकती है? If we use best quality design and all the equipments that are present in a nuclear power station should be of high quality. उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, वो काम इफेक्टिव करेंगे, काम जल्दी होगा, और इसके अलावा वेस्ट भी कम प्रोड्यूस होगा. कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग टू डिटेक्ट इक्विपमेंट फेलियर. इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ फेलियर, कोई भी इक्विपमेंट है वो काम करना छोड़ दे, तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए. देयर शुड बी अ प्रॉपर चेक एंड बैलेंस, एंड देयर शुड बी अ प्रॉपर मॉनिटरिंग रिपेयरिंग सिस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट विच इज़ नॉट वर्किंग. अगर वो काम नहीं करा, उसको रिप्लेस किया जाए. अगर ऐसे ही हम डिफेक्टिव पीसेस को यूज करेंगे, दैट विल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन. थर्ड इज द प्रिवेंशन ऑफ सिग्निफिकेंट रेडियो एक्टिव रिलीजेस. सो देयर इज वर्क ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल. तो जहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल होता है, वहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज किया जाता है. रेडिएशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं. सो दोज रेडिएशंस मस्ट बी, रिलीज ऑफ दोज रेडिएशंस मस्ट बी प्रिवेंटेड for efficient working of a nuclear power plant. Second concern is the safe disposal of waste. Although waste is not produced in a much quantity, but there is some waste, and that waste should be properly disposed. Why? Because it is non-biodegradable. Non-biodegradable का मतलब है कि वो waste naturally environment उसको degrade नहीं कर सकती. Moreover, it also causes health hazards. लाइक डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स वहाँ पे काम करें, या फिर जो जहाँ पे डिस्पोज किया जा रहा है वेस्ट को, वहाँ पे और भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, लाइक प्लांट स्पीशीज हैं, एनिमल स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं. सो इट मे कॉज डैमेज टू दोज एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो जीन्स को जाके डैमेज करता है, जीन्स म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सी डिजीजेज हो सकती हैं. So radioactive isotope should be disposed of properly, and following measures should be taken. First one is deep ocean disposal. Deep ocean disposal कि वेस्ट मटेरियल को ओशन के अंदर प्रॉपरली डीप इन द ओशन उसको डिस्पोज किया जाए. डीप जियोलॉजिकल बैरियर मीन जमीन के नीचे बहुत गहराई में उसको वेस्ट को डिस्पोज करना चाहिए. देयर शुड बी रिसाइकलिंग ऑफ सम मटेरियल टू प्रिवेंट द toxicity or the poisonous nature of the nuclear material. And the last is the reprocessing and solidification process. Reprocessing and solidification means liquid is directly converted into solid form by decreasing the temperature below freezing point. उससे भी nuclear material को हम convert कर सकते हैं into less toxic form. So these measures should be taken for efficient disposal of nuclear waste. In your book, there is a nuclear incident reported that occurred on 26 April 1986 at the Chernobyl nuclear power plant in Ukraine. So basically later on it was known that there is flaw in the design of the nuclear reactor which results in the explosion of the nuclear power plant. Large quantity of radioactive contamination was spread into the atmosphere over western USSR as well as in the Europe. There were many casualties, almost 57 deaths were reported, 5,000 workers were affected. और इसकी वजह से जो बाद में लेटर ऑन इफेक्ट्स भी देखे गए, हेल्थ पे बहुत डिजास्टर्स इफेक्ट देखे गए, डिफरेंट डिजीजेस रिपोर्ट हुई उन वर्कर्स के अंदर. सो दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेजर इंसिडेंट्स in the nuclear power plant in history.
Another such event was also reported in Japan in 2011, and it is known as Fukushima accident. And in this accident, again, there is explosion of the nuclear power plant, which also resulted in many casualties, as well as many health hazards also occurred in the workers. Next impact of human on environment is in the form of global warming. So global warming is the phenomena in which the temperature in the earth is increasing. And this increase in temperature is due to absorption of high energy radiations by carbon dioxide. बेसिकली जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं लाइक फॉसिल फ्यूल्स के साथ जो काम हो रहा है, इसके अलावा मोटर व्हीकल से जो जितने भी पोल्यूटेड केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है. जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज करी है तो ये हाई एनर्जी रेडिएशंस विच आर कमिंग फ्रॉम द सन टू द एटमॉस्फेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. जैसे उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो अर्थ का टेम्परेचर है इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. एज अ रिजल्ट द फिनोमेना ऑफ ग्लोबल वार्मिंग अकर्स. इसी की वजह से टेम्परेचर अगर हम देखें तो उन एक्सट्रीम टेम्परेचर हमें नजर आ रहे हैं. गर्मियां हैं तो शदीद गर्मियां होती हैं, ठंड होगी तो शदीद सर्दी आती है. लेकिन जो गर्मियों का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो वो बढ़ गया है, ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. So amount of carbon dioxide is 0.04% in the atmosphere. Let's look at the causes of global warming. First is the amount of CO2 is increased due to human activities, burning of land, fossil fuels, transportation use, and cutting of trees result in the increase of carbon dioxide. Exhalation of CO2 during breathing is also जितनी ज़्यादा population का increase कर रही है, carbon dioxide भी उतनी फिर जो है exhale होगी during breathing process, and it also results in the increased concentration of it in the outer atmosphere. Eruption of volcanoes is also one of the reason of its increased concentration. So there are many different factors that are responsible for increasing the concentration of carbon dioxide, और इसी की वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है. So all these activities are related to the human working, human activities हैं. Let's look at the long-term effects of global warming. But before looking at the long-term effects, हम ये देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है अर्थ में पहले इट वाज रिपोर्टेड दैट इट इज 0.03% इन द मिड 20th century, but now it becomes 0.04%, and as a result we can see that temperature is also changing drastically. लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की बात की जाए तो जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी सो मोर इंफ्रारेड रेडिएशंस विल बी ट्रैप्ड एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हैं वो ज़्यादा ट्रैप हो जाएंगे और इन्हीं की वजह से ही अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है. As an increase of only 1.3 degree would make the world warmer than at any time in the past 100,000 years. तो वही बात है, with the passage of time temperature is increasing. Now with the slight increase in concentration of carbon dioxide, temperature also increases. A worst case scenario suggests that the warming would be great near the poles. और ग्लेशियर्स देखें तो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हो रही है जिसकी वजह से और भी डिफरेंट कंसर्न्स राइज होते हैं, लाइक देयर कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लड्स. और अगर ग्लेशियर्स इसी तरह पिघलना शुरू कर दें पानी की भी, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम कमी हो सकती है. So it would alter the geographical distribution of precipitation, making major agricultural areas dry. तो जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स दी प्रेसिपिटेशन, लाइक रेनफॉल नहीं होगी, स्नोफॉल नहीं होगी. उसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल एरियाज हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे. ड्राई कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी, अनफर्टिलिटी होगी सॉइल के अंदर, एंड अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट दी ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. सो थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से CO2 का लेवल इंक्रीज कर रहा है, उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है. अल्टीमेटली टेम्परेचर से जो प्रेसिपिटेशन का रेट है वो अफेक्ट हो रहा है, विच देन अफेक्ट्स डिफरेंट क्रॉप्स, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, एंड अल्टीमेटली अफेक्ट द फूड इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. So let's look into this. It basically summarizes the global warming effect. अगर हम देखें तो ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर आ जाती हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो जब ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट की वजह से जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, दे विल एब्जॉर्ब हाई एनर्जी रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन. जब वो ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी तो टेम्परेचर अल्टीमेटली अर्थ का इंक्रीज कर देगा
और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। I hope lecture is clear to you. We have discussed about the human impacts on environment. Then we had discussed population dynamics, different characteristics, how they are affecting the number of individuals living in a population. Thank you so much. Have a good day.